This is the second part of this chapter, the best Christmas present in the world. I am going to start explaining this part. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I've ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. This is the this part is full of letter written by Mr. Macpherson to his wife, dearest Connie. He says in his letter, in his own words, in this way, कि मैं बहुत ही खुश दिल से तुम्हारे पास यह पत्र लिख रहा हूँ इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, यानी खुश मिजाज से, अत्यधिक खुश मिजाज से मैं यह पत्र तुम्हारे पास लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ आश्चर्यजनक बातें अभी तुरंत घटित हुई है जिन्हें मुझे अवश्य बतलाना चाहिए। हम सभी अपने अपने ट्रेंचेज में कल की सुबह खड़े थे, अपने अपने बंकरों में खड़े थे। क्रिसमस की सुबह, यह क्रिसमस की सुबह ठंडक थी, शांत थी। यह उतनी ही सुंदर सुबह थी, इतनी सुबह सुंदर थी जिसे मैंने कभी देखा हो। ऐसी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखा था। यह सुबह उतनी ही ठंडक और ठंड से जमा देने वाली ठंडक थी जैसा कि क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then, they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas." When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fred, same to you." I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another figure up on the parapet and another. "Keep your heads down," I told the man. "It's a trick," but it wasn't. मैं तो अब तुम्हें यह बतलाना चाहूँगा कि शुरुआत हम लोगों ने की थी, लेकिन सच्चाई तो यह है जिसे मैं कहने में मुझे लज्जा महसूस करता हूँ। आई एम अशेम्ड टू से। सच्चाई तो यह है कि यह शुरुआत फ्रिट्स सैनिकों ने की थी। वही फ्रिट्ज is called German army is called Fritz. First of all, सर्वप्रथम किसी ने विपरीत सीमा से
विपरीत सीमा के बंकरों से सफ़ेद झंडा को लहराते हुए किसी ने देखा। और तब उन लोगों ने नो मैन लैंड यानी युद्ध भूमि के पार से उन लोगों को चिल्ला कर कह रहे थे, विपरीत युद्ध के उस पार की सीमा से, मुबारक हो क्रिसमस टॉमी। व्हाट इज टॉमी? ब्रिटिश आर्मी इज कॉल्ड टॉमी, तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी। जब हमें तो आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित थे, तो कुछ हम में से सैनिकों ने चिल्ला करके कहा, आपको भी मुबारक हो फ्रेड, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बस बात मुबारकबाद तक ही रहेगी, बात समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने यही सोचा था। लेकिन तब अचानक उनमें से एक खड़ा हुआ, ग्रे कोट पहने हुए और सफ़ेद झंडा लहराते हुए, कहा कि बालक, गोली मत चलाना। किसी ने चिल्ला करके कहा, बालक गोली मत चलाना। किसी ने गोली नहीं चलाई। दूसरा फ्रेड खड़ा हुआ सीमा पे, फिर तीसरा। तो मैंने अपने आदमियों से कहा, अपना हेड डाउन रखो। मैंने उन लोगों को कहा, अपना हेड डाउन रखो, यह दुश्मन की चाल है। लेकिन यह दुश्मन की चाल नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. It's Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sauces, we meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first of all. Come on, boys, what are we waiting for? Then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then. I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. एक जर्मन सैनिक अपने माथे के ऊपर बोतल लहरा रहा था। कहा कि आज का दिन क्रिसमस दिवस है टॉमी, और हम लोगों के पास स्नैप्स है। व्हाट इज स्नैप्स? तो स्नैप्स अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ड्रिंकिंग है स्नैप्स। और वी हैव सोसेज। सोसेज मीन मीट। हम लोग के पास पेय पदार्थ है, नशीले पेय पदार्थ है और मांस है। वी मीट यू, हम लोग तुमसे मिलेंगे आज क्रिसमस दिवस के अवसर पर। हाँ, तो क्या हम लोग मिलेंगे आज? आज हम लोगों को मिलना चाहिए। इस समय तक नो मैन लैंड के पार से हमारी तरफ सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक हमारी तरफ बढ़ रहे थे, और उनमें से किसी के पास उन लोगों के बीच में कोई राइफल, कोई बंदूकें नहीं थीं। एक छोटा निजी मॉरिस पहले खड़ा हुआ, कहा कि कम ऑन, आओ लड़के, हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर उनका आना रुका नहीं, वे लोग आते रहे। मैं तो अपने
ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर था। मुझे तो उन लोगों को आने से रोकना चाहिए था वहाँ, लेकिन मैं मानता हूँ मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन सच्चाई यही थी कि ऐसी बात कभी नहीं घटित हुई थी मेरे सामने। और उनके लाइन में, हमारे लाइन में मैं तो देख सकता था कि वे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। ग्रे कोट्स वाले, खाकी कोट्स वाले सब बीच मैदान में मिल रहे थे, घुल मिल रहे थे। मैं भी उनमें से एक था। मैं भी इस भीड़ का, इस मीटिंग का एक हिस्सा बन गया और युद्ध के बीच में हम लोग शांति स्थापित कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. डियरेस्ट कॉनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने फ्रिट्स अफसर की आंखों में जैसा कि मैंने देखा, उस समय जो मेरी भावना उठी थी, भावनाएं, उसकी कल्पना नहीं कर सकती हो। हाँ, वो फ्रिट्स अफसर पहुंचा था मेरे पास और अपना हाथ फैलाया और उसने मेरे हाथ को बड़ी नम्रता से पकड़ते हुए कहा, हाथ मिलाते हुए कहा, और मेरा हाथ पकड़े रहा और कहा, माय नेम इज हंस वुल्फ। मेरा नाम हंस वुल्फ है और मैं डसलडोर्फ का निवासी हूँ, मैं वहीं से आया हूँ और ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो बजाता हूँ। आपको क्रिसमस मुबारक। Captain Jim MacPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. मैंने भी जवाब दिया, Who is I? Mr. MacPherson. I is Mr. MacPherson. तो मैकफर्सन ने जवाब दिया कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई एम कैप्टन जिम मैकफर्सन, और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डोरसेट नामक जगह से आता हूँ और मैं एक स्कूल टीचर हूँ, विद्यालय शिक्षक हूँ। Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces, and we talked, Connie. How we talked! He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So, out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about
everything. He was my enemy. There never was a Christmas party like it. कहानी तो हंस उल्फ ने मुस्कुरा दिया, कहा कि डोरसेट, इस डोरसेट को मैं, इस स्थान को मैं जानता हूँ, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम दोनों ने, मैं और हंस उल्फ वॉज द ऑफिसर ऑफ फ्रिट्ज आर्मी और आई वॉज द ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, टॉमी। तो हम दोनों रम और मांस को हम दोनों ने शेयर किया, मिल बांट के खाया। हम दोनों ने रम पिया और अच्छा सॉसेज खाया, मांस मीट खाया। और हम लोग बात करते थे कहानी, कैसे हम लोग बात करते थे, वह तो प्रायः शुद्ध इंग्लिश बोलता था, परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। और ऐसा लेकिन पता चला कि जब उसने बताया था कि मैं डोरसेट को जानता हूँ, तो वो डोरसेट में तो उसने कभी अपना कदम भी नहीं रखा था, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। उसने डोरसेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में उसने स्कूल से सीखा था, स्कूल से जाना था। स्कूल में जो किताबें पढ़ाई होती थी, किताबों को पढ़ करके उसने जाना था इंग्लैंड और डोरसेट के बारे में। और उसका प्रिय लेखक में सबसे ज़्यादा पसंद करता था इंग्लिश राइटर को, टॉमस हार्डी उसका प्रिय लेखक था। और उसकी फेवरेट बुक, उसकी प्रिय किताब, पढ़े जाने वाली किताब, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसलिए वहाँ नो मैन लैंड में हमने बाथशेबा के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात की, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की और डोरसेट के बारे में बात की। और हंस वुल्फ कोई पत्नी थी और एक पुत्र था, जो 6 महीने उस पुत्र का जन्म हुआ था, उसके पुत्र का। और मैंने अपने चारों तरफ देखा कि खाकी वर्दी वाले और ग्रे वर्दी वाले, चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, खाकी वर्दी वाले और ग्रे वर्दी वाले की। मेरे चारों तरफ, अपने चारों तरफ मैंने देखा। और नो मैन लैंड में सब कोई धूम्रपान कर रहे थे, कोई हंस रहे थे, कोई बात कर रहे थे, कोई पी रहे थे, कोई खा रहे थे। हंस उल्फ और मैं क्रिसमस केक, एक तुम्हारा जो क्रिसमस केक जो था आश्चर्यजनक, वो मार्जिपैन जो बचा कुचा था, उसमें हंस उल्फ और मैंने शेयर किया, खाया मिल बांट के मार्जिपैन को। हंस उल्फ तो सोचता था, वह सोचता था कि मार्जिपैन सबसे अच्छा स्वादिष्ट उसके लिए था, सबसे अच्छा था जिसको उसने कभी चखा था। कहा कि ऐसा स्वाद मुझे कभी नहीं मिला, ये सबसे अच्छे स्वाद का है मार्जिपैन। और वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग हर चीज़ के बारे में एक दूसरे से सहमत हो जाते थे, जबकि वो हमारा दुश्मन था। फिर भी हम दोनों में इतनी अच्छी मित्रता हो गई इस क्रिसमस डे को। क्रिसमस पार्टी, इस तरह की पार्टी कभी नहीं हुई थी कौनी। Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fred out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. We saw it too and smiled. Jim McPherson,
He said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one died in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो मैं नहीं जानता कि किसने फुटबॉल लाया। अब ग्रेट कोट्स मान वर्दियों का कोट का ढेर लगा दिया गया गोल पोस्ट बनाने के लिए। और तब अगली बात जो हम लोग समझ गए कि टॉमी और फ्रिज के बीच में, इस नो मैलैंड के बीच में, युद्ध के बीच में, फ्रिज और टॉमी के बीच में फुटबॉल मैच होगा। हम लोग समझ गए ये फुटबॉल मैच होने जा रहा था। तो हंस उल्फ और मैं इसे देखता, इस फुटबॉल मैच को मैंने देखा और खूब खुशी जाहिर की, हाथों की तालियां बजाई, पैर ज़मीन पर शाबाशे में मैंने स्टैंपिंग किया, पैर पटका और हम लोग पैर पटक के ताली बजा के ठंड को भगाते रहे और उन लोगों को शाबाशी हम दोनों ने देना शुरू कर दिया। एक क्षण ऐसा था कि हम सबों के बीच हवा में हम लोगों की सांसें एक दूसरे की सांसें मिलती थी, घुल मिल रही थी हवा में। हमने देखा मिलते मिलते हुए सांसों को, और उसने भी देखा और तब मुस्कुरा कर के कहा हंस उल्फ ने कि जिम मैकफर्सन। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, मैं सोचता हूँ कि दिस इज हाउ, इसी तरह से हम लोगों को युद्ध का समाधान करना चाहिए, खेल के माध्यम से। और फुटबॉल मैच में न हार न जीत, इस हार और जीत में, इस फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, कोई पत्नियां विधवाएं नहीं होती हैं। I prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that. Together we watched the game. Sad to say, Connie, Fritz won. 2-1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. मैंने कहा हंस वुल्फ को कि हम लोग इंग्लैंड वासी, ब्रिटिश, मैं क्रिकेट ज़्यादा पसंद करता हूँ खेलना। अगर आप क्रिकेट खेलें तो निश्चित है कि हम टॉमी लोग, हम लोग ब्रिटिश आर्मी इस क्रिकेट को जीत जाएंगे खेलने में आपसे। और ऐसा तो हम दोनों इस बात पर हंस पड़े और एक साथ हम लोगों ने इस फुटबॉल मैच को देखा। लेकिन दुखद बात यह थी कोनी कि फ्रिट्स जीत गया, एक के मुकाबले 2 गोल से फ्रिट्स जीत गया। लेकिन क्योंकि हंस वुल्फ बड़ी उदारता से कहा कि हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा चौड़ा था और यह उधर का गोल कम चौड़ा है, इधर ज़्यादा है, इसलिए अच्छी बात नहीं है। दोनों की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए गोल की, ऐसा हंस वुल्फ ने कहा। द टाइम केम all too soon when the game was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans Wolf well, told him I hoped
he would see his family again soon, the fighting would end and we could all go home. जब समय आया तो खेल तो समाप्त हो गया था, शीघ्र ही समाप्त हो गया था और स्नैप्स यानी नशीले पेय पदार्थ, रम, शराब, सॉसेज मीट सब बहुत पहले ही समाप्त हो गए थे और हम लोग जान गए थे कि इट वॉज ऑल ओवर, अब सब कुछ समाप्त है। तो मैंने हंस वुल्फ से यह अभिलाषा प्रकट की। मैंने उससे कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार से शीघ्र ही मिलेंगे और यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम लोग अपने अपने घर जा सकेंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. तो हंस उल्फ ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ऐसी बात, परिवार से मिलने की बात, घर जाने की बात, इस तरह की बात दोनों तरफ की हर सेना चाहती है। दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ की सेनाएं चाहती हैं। और जिम मैकफर्सन, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मैं एक क्षण को कभी नहीं भूल सकूँगा, कभी नहीं भूलूँगा ऐसे सुखद समय को, और न तुम कभी भूल पाओगे। और उसने मुझे अभिवादन किया और धीरे धीरे अनिच्छा से मुझसे वो जुदा हुआ, धीरे धीरे वो चला। मैंने भी अनुभव किया। तो वह मुड़ा फिर एक बार मुझे अभिवादन करने के लिए, और तब वह उन ग्रे कोट वाले आदमी जो अपने अपने बैंकरों की तरफ वापस हो रहे, ग्रे कोट वाले, सैकड़ों ग्रे कोट वाले का वह एक हिस्सा बन गया। उनमें से वह एक व्यक्ति हो गया। उनके साथ वो अपने बैंकर में चला गया। हंस वुल्फ। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol, and singing it quite beautifully. It was a still night, silent night. Our voice gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. We exchanged carols for a while, and then we all felt silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात हम लोग अपने गड्ढों में, अपने बंकर में लौट आए और हमने सुना उनको कैरल गाते हुए। कैरल मीन्स a religious song that is sung by Christian. तो कैरल धार्मिक गीत गाते हुए सुना। फिर वे लोग इस गीत को बड़े सुंदर ढंग से गा रहे थे। यह स्टिल नाइट है, साइलेंट नाइट। हमारे लड़कों ने भी कोरस उनके साथ सुर मिला करके उनका साथ दिया, गा करके व्हाइल शेफर्ड वॉच्ड तरह का कोरस गीत गाया। हमारे सैनिकों ने भी उनके साथ। हम लोगों ने एक दूसरे के कैरल को सुना और सुनाया थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम सब के सब साइलेंट हो गए, चुप हो गए। हम लोगों ने बड़ी शांत, हम लोगों के पास यह अपना
शांति और सद्भावना का समय था। हम लोगों ने शांति और सद्भावना का समय अपना समय बिताया था, और ऐसा समय, अनमोल समय, जिसे मैं खजाने की तरह संजो के रखूँगा तब तक जब तक मैं जीऊँगा। That's the ends of second part of explanation. No, sorry. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today. How much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. Your loving Jim. मैं तो समझा कि यह सेकेंड पार्ट समाप्त हो गया, लेकिन एक पैराग्राफ सेकेंड पार्ट का है जो मैं बतला रहा हूँ आपको। लास्ट में मिस्टर मैकफर्सन पत्र में लिखते हैं कि डियरेस्ट कॉनी, अगले साल क्रिसमस तक युद्ध अब कुछ नहीं रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और यह एक दूर और एक भयंकर याद रह जाएगा, यह युद्ध है। और मैं जानता हूँ आज की घटना से कि कितना दोनों तरफ की सेनाएं शांति चाहती हैं, और मैं जान गया हूँ कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और हम लोग शीघ्र ही मिलेंगे एक दूसरे से, मुझे ऐसा यकीन है, विश्वास है। योर लविंग जिम मैकफर्सन। Dear students, in this page there are some questions, comprehension check. Who had written the letter to whom and when? Jim McPherson had written the letter to his wife, Mrs. Coney, when he was fighting a war. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? यह पत्र क्यों लिखा गया था और ऐसे आश्चर्यजनक बातें क्या थी, क्या थी जो घटित हुई थी? The letter was written by Mr. McPherson, who was fighting a war. British Army invited British Army to celebrate Christmas Day in the middle of the battlefield. Both armies drank, ate sausage, rum, and played football. In this way, they tried to resolve the war by playing football in the middle of no man's land. This was the wonderful thing that had happened. Due to this, the letter was written to tell about this incident. Thanks. What job did Hans Wolff and Jim McPherson have when they were not soldiers? When they were not soldiers, Hans Wolff was a cello player in the orchestra, and Jim McPherson was a school teacher from Dorset in the west of England.
Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? Hans Wolf had never been to Dorset. He said it. He said it because he knew from his school, from the books, his favorite writer was Thomas Hardy, and favorite book Far from the Madding Crowd. So he knew about England and Dorset from the student life in the school. Do you think Jim McPherson came back from the war? No. Jim McPherson never came back from the war. How did you know this? At last, at the end of the chapter, Mrs. Coney said about his husband, his husband promised to come back next year. This statement shows that Jim McPherson never came from the war. This is the end of the second part. Next day, I will upload the video, the third part. Thanks.